ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम हॉरिजॉन्टल पैराबोला वर्टिकल पैराबोला के इक्वेशंस के बारे में देखे हैं. सो लेट अस कंटिन्यू एंड टुडेस टॉपिक इज शिफ्टेड पैराबोला. सो लास्ट क्लास में हम ये भी देखे हैं शिफ्टेड पैराबोला का मतलब क्या है. सो इफ यू हैव a coordinate system, you have seen that the standard right handed parabola has an equation of the form y square is equal to 4ax. अगर इस पैराबोला को without changing the direction, if you just move this parabola to another point, for example, if you are doing something like this, so you have a parabola which is horizontal, that means the axis is still horizontal. मान लीजिए एक पैराबोला ऐसा है, इसका एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, but the vertex is not at origin. Assume that the vertex is at a point h comma k. If this parabola is this, if this green parabola is the shifted form of the black parabola whose equation is y square is equal to 4x, so the equation of green parabola will be something like y minus k whole square is equal to 4a into x minus h. This is the concept. अगर x के प्लेस में x minus h, y के प्लेस में y minus k पुट किया तो the parabola will get shifted without changing the direction to a point h comma k. Clear है ये? This is a simple concept of shifted parabolas. So now let us look at some questions based on shifted parabolas. Okay. So the question is something like this: find the vertex, axis, focus, directrix and lattice rectum of the following parabolas and draw their rough sketches. So the first parabola which you are going to look at is y square minus 8y minus x plus 19 is equal to 0. As you can see, the simplest parabola has 2 terms and the most complicated parabola can have up to 6 terms. So shifted parabolas have a complexity somewhere in between the simplest and the complex. So a shifted parabola can have up to 4 terms. Okay. So y square minus 8y minus x plus 19 is equal to 0. पहला हमको ये भी पता नहीं कि ये पैराबोला है क्या नहीं. This is some second degree quadratic equation in x and y. So let us see whether it is a shifted parabola. So इसके लिए मैं क्या करता हूं, I'll try to convert this equation into standard form using the method of MCS. MCS means method of completion of squares. क्या है? Method of completion of squares. So how do we use method of completion of squares? देखिए, first आप देख सकते हैं इसमें y square term है but x square term नहीं है, and there is also no xy term. Okay, so first आप क्या करिएगा, y का सारा टर्म्स एक जगह रख लीजिए, x का सारा टर्म्स दूसरा तरफ भेज दीजिए. फॉर एग्जाम्पल y square minus 8y is equal to x minus 19 है सर. y square minus 8y is equal to x minus 19. Minus x and 19 have gone to the other side. Now you have to try to complete this into a perfect square. You use the formulas a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, or a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ये दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके आप स्क्वायर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिएगा. कैसे है? y स्क्वायर माइनस 8y कैन बी रिटन एज 2 into y into 4. ऐसा नो, 8y कैन बी रिटन एज 2 into y into 4. ये देखने में y स्क्वायर माइनस 2y into समथिंग
एंड इफ दिस हैव टू बी समथिंग स्क्वायर, बगल में क्या होना चाहिए, 4 स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab टर्म तो है मेरे पास। इफ यू वांट टू write it as something whole square, you have to have b square. So I'll add the b square term onto both sides. So इस तरफ plus 16 करूंगा, x minus 19 plus 16. So this implies y square minus 2y into 4 plus 16 is y minus 4 whole square is equal to x minus 3. So you compare this with y square is equal to 4x. You compare this with y square is equal to 4x. So आप ध्यान से देखा तो you can see that in the place of y you have y minus 4, in the place of x you have x minus 3, and in the place of 4a you have 1. Yes or no? So y has been replaced by y minus 4, x has been replaced by x minus 3, and in the place of 4a you have 1. So by using our concept, we can see that this is a shifted form of y square is equal to 4x. Y square is equal to 4x is a horizontal parabola. So ये भी एक horizontal parabola है जिसका vertex कहाँ है? Vertex is at h comma k. H is this, k is this. So vertex क्या होगा? 3 comma 4. And this is also a horizontal parabola. This is also a horizontal parabola. And 4a, which is the latus rectum, is equal to 1. So I hope you are understanding. So I hope you are understanding the process that we have used. Okay. So अब आप कुछ respond करना है तो respond कर सकते हैं. Shayantan, you are saying something. सर बोलिए बेटा. सर फोकस 1/4,0 है क्या? देखते हैं फोकस उसमें आएंगे. पहला यहां तक समझ में आया? यस सर. बाकी लोग को समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछिए यहाँ इस स्टेज पे. एनीबॉडी हैव डाउट्स? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज फाइंड करना है एंड आल्सो यू हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच. ओके, ध्यान दे दीजिए. लेट अस ट्राई टू फाइंड द अदर प्रॉपर्टीज. सो y minus 4 whole square is equal to x minus 3. सही है क्या नहीं? So the vertex is simply 3 comma 4. Clear है? Yeah. And latus rectum, which is equal to 4a, is 1. Okay. So if you try to draw the rough sketch, so let us draw the coordinate system. Okay. So let us draw the coordinate system. Okay. So what is the vertex? The vertex is 3 comma 4. Okay. And it is a horizontal parabola. इसका मतलब मेरा parabola जो है, it will be something like this, right? एक बार देख, मैं draw करता हूँ. Just look whether my axis should look something like this. Yes or no? My axis should look something like this. And my parabola will look something like this. Yes or no? Now, how do you find the focus and directrix of this parabola? अब ध्यान दे दीजिए. If you have y square is equal to 4x, focus क्या है? a comma 0 है ना? If you look at it this way, the focus is at a distance of a from the vertex along the axis. And the directrix is at a distance of a on the other side. And the directrix is perpendicular to the axis. Yes or no? So same concept यहाँ use किया तो इस parabola में. Okay, use it.
So if the vertex is 3, 4, अब फोकस एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा नो, इनसाइड द पैराबोला, एंड डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होना चाहिए, पैराबोला का बाहर होगा, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऐसा नो, यहां तक समझ में आया? फोकस जो है एक्सिस पे पैराबोला के अंदर होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स शुड बी perpendicular to the axis and on the other direction from the vertex, yes or no? And focus से vertex तक distance क्या होगा? The distance is nothing but a, yes or no? आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं? Yes, sir. क्लियर है? So according to this question 4a is 1, so a equal to 1/4 होना चाहिए, yes or no? So 3, 4 से आप 1/4 यूनिट आप राइट साइड गया तो what are the coordinates that you get? If you move horizontally, only the x coordinate changes, yes or no? The y coordinate will not change, y coordinate अभी भी 4 है, सही है? y coordinate अभी भी 4 है, so x coordinate कितना होगा? 3 units, you have gone right by 1/4 units, so x 3 by coordinate 4. क्या होगा? 3 plus So 1/4, 3 by 4. 13/4, okay? 13/4, 4 is the focus of this vertex. समझ में आ रहे? एंड डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप 3, 4 से 1/4 यूनिट्स पीछे जाना पड़ेगा. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट अगर मान लिया तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? अभी भी y कोऑर्डिनेट 4 ही होगा, x कोऑर्डिनेट 3 minus 1/4 हो गया, सो नो. व्हाट इज 3 minus 1/4? 11/4, ऐसा नो. So what is the equation of the vertical line which passes through 11/4, 4 parallel to y-axis? X equal to constant जैसा होना चाहिए, ऐसा नो. And 11/4, 4 से जा रहा है, इसका मतलब what is the directrix? X is equal to 11/4. Clear है क्या नहीं? So the directrix is x is equal to 11/4. The focus is 13/4, 4. Clear? Latus rectum is 1 unit. Axis, what is the axis of this parabola? Axis is this dotted line. इसका equation क्या होगा? The dotted line is parallel to x-axis. इसका मतलब y is equal to constant के फॉर्म में होगा. And what is the constant? Y is equal to 4, right? है ना? y coordinate 4 है ना इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स का. So properties clear है सारा. And if you want a vertex is 3, 4. Clear है क्या नहीं? जल्दी बोलिए. समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Shall we go to the next question? Yes, sir. Yes, sir. So again you're given another equation, इसको एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं. इसमें भी देखिए y स्क्वायर टर्म है, you have a y square term, you have a y term, you don't have an x square term, you don't have an xy term. X square and xy term are not present, okay? There are 4 terms. So इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे. So what is the process? Separate the y terms and x terms, okay? Can I do this? Yes, sir. So 4y square minus 20y, आप 4 कॉमन लिया तो y square minus 5y, yes or no, is equal to, if you take minus as common, 12x minus 67, okay?
So if you want to complete this square, what is the number that you need to have? y square है माइनस 5y सर को 2 इंटू वाई इंटू 5/2 लिख सकते हैं, ऐसा ना? सर हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। सर वहाँ पर 12x प्लस 67 होगा 12x प्लस प्लस 67 67, बहुत अच्छा है, गुड। तो ये 4 जो कॉमन लिया मैंने, यू कैन डू विदाउट टेकिंग 4 एज कॉमन ऑल्सो, 4 को कॉमन लेने का जरूरत नहीं, ऐसे ही मैं लिया हूं, ठीक है। सो 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 5y, सो मुझे एक 25/4 चाहिए, 5/2 का होल स्क्वायर चाहिए, ऐसा नो? सो प्लस 25/4 माइनस 25/4, ऐसा नो? इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12x प्लस 67, क्योंकि प्लस करके माइनस भी कर लिया एक ही जगह, you don't need to do anything on the right side. So this implies 4 times y minus 5/2 का whole square, yes or no? If you take these three terms, it is y minus 5/2 whole square, and minus 4 into 25/4, so minus 25 हो जाएगा। 4 into 25/4 is 4 into 25/4, 4 cancel होके minus 25 is equal to माइनस 12x माइनस 67। सो ये माइनस 25 को मैं उस तरफ भेज देता हूं। सो 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67 प्लस 25, कितना आएगा? माइनस 42, ऐसा नो? क्लियर? So what is your aim? Your aim is to convert this into which form? देखिए आपका फॉर्म कहां तक लेके जाना है वो माइंड में क्लियर रखिए। y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर इंटू एक्स माइनस h, यहां तक लेके जाना है ना आपको, ऐसा नो? हाउ टू ब्रिंग इट टू दिस पॉइंट, ऐसा नो? Yes, इसका sir. मतलब ऑन द लेफ्ट साइड यू शुड हैव ओनली y माइनस समथिंग होल स्क्वायर, यह एक्स्ट्रा 4 है ना, उस 4 को मैं उस तरफ भेज देता हूं, ओके? So this implies y minus 5/2 whole square is equal to, ये 4 को आप डिवाइड बाय किया तो माइनस 3x माइनस 21/2 आएगा, ऐसा नो? If you divide both sides by 4, you are going to get this. Left side y minus something whole square, exactly as you would have wished. राइट साइड में समथिंग इनटू ब्रैकेट में सिर्फ x माइनस समथिंग होना चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 कॉमन लेता हूं, आई टेक माइनस 3 एज कॉमन। सो क्या आएगा, x प्लस व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, माइनस 3 कॉमन लिया था दोनों तरफ, 7/2, ऐसा नो? क्लियर? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. So now this is of the form y minus something whole square is equal to something into x minus something, okay? Sir. हाँ बोलिए बेटा, Sir. हाँ बोलिए। Sir, vertex minus 7/2 comma 5/2 है। सही है। So as Sir, you can vertex see, is minus 7/2 मैं पूछता हूँ बेटा आंसर्स के लिए, ठीक है? जब मैं पूछता हूँ तब बोलिए। So now as you can see, y square is equal to 4a into x minus something फॉर्म में है, बट जो 4a टर्म के साथ एक माइनस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से आप कंपेयर कर सकते हैं ये, बट 4a के आगे एक नेगेटिव नंबर है ना, ऐसा नो? सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, दिस इज ए राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला? Left-handed. दिस शुड बी ए Left-handed. लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, समथिंग समझ में आ रहा है? So let us try to find the properties of this parabola, and let us try to draw the rough graph of this parabola, okay? So let me do it in the next page. यहाँ तक नोट किया सब लोग? नोट किया यहाँ तक? Yes, sir.
आगे जा सकता हूं? Yes, sir. So y minus 5 by 2 whole square is equal to minus 3 into x plus 3 by 2. So we can compare this with y square is equal to minus 4ax, ऐसा ना? So x के प्लेस में क्या है? x plus 3 by 2. y के प्लेस में y minus 5 by 2. ये माइनस माइनस एडजस्ट हो गया. 4a के प्लेस में यू हैव प्लस 3. क्लियर है क्या नहीं? सर x plus 7 by 2 है ना? x plus okay 7 by 2, sorry, good. x plus 7 by 2, clear. So by comparison, what is the vertex? Minus 7 by 2 comma 5 by 2, yes or no? x plus 7 by 2 का मतलब x minus of minus 7 by 2, yes or no? So this is a vertex. What is the latus rectum? Latus rectum is 4a, which is equal to 3. Clear है? Okay. So let us try to draw the rough graph of this. What is the vertex? The vertex is minus 7 by 2 comma 5 by 2. यहाँ है. Rough graph draw कर रहा हूँ मैं. And the parabola will be something like this. It will be going towards left, yes or no? And if you look at the axis will look something like this. So axis का equation क्या है? The axis is parallel to x-axis, yes or no? So axis का equation y is equal to constant जैसा होना चाहिए. So y is equal to कितना होगा? Axis का equation. y equals to 5 by 2. Y is equal to 5 by 2. Clear? And आपको पता है, the focus will be at a distance of a from vertex inside the parabola. The directrix will be at a distance of a units from the vertex on the other side of parabola, yes or no? So focus मेरा यहाँ होना चाहिए, yes or no? So यहाँ से कितना आगे आना चाहिए और कितना पीछे जाना चाहिए? a units पीछे जाना चाहिए, yes or no? So what is a here? A is 3 by 4, yes or no? 3 by 4. So अब ध्यान दे दीजिए, if you are moving horizontally, only the y coordinate changes, so only the x coordinate changes, yes or no? So vertex का जो y coordinate 5 by 2, वो y coordinate change नहीं होगा, yes or no? Don't change the y coordinate. So x coordinate, vertex का minus 7 by 2, 3 by 4 units पीछे गया. So what will be the x coordinate? Minus 7 by 2 minus 3 by 4, ऐसा no? Minus 7 by 2 से और 3 by 4 माइनस करना है. So कितना आएगा? Minus 17 by 4. Clear? So minus 17 by 4. Okay. Minus 17 by 4. Clear है क्या नहीं? And अगर डायरेक्ट्रिक्स चाहिए आपको, what you should do is the exact opposite. Minus 7 by 2 से you have to go 3 by 4 on the other direction. So if you take this point, अगर इस point की बात कर रहे हैं, so उस point का coordinates क्या होगा? Y coordinate तो 5 by 2 होगा. X coordinate क्या होगा? Minus 7 by 2 plus 3 by 4, ऐसा no? minus 11 by 4. Minus 11 by 4. Clear है? So what will be the equation of this directrix? X is equal to minus 11 by 4. Clear है? So the focus is minus 17 by 4 comma 5 by 2. The directrix is x is equal to minus 11 by
ओके इज इट ओके? तो सारा प्रॉपर्टी समझ में आया? सो फर्स्ट क्वेश्चन हम राइट हैंडेड पैराबोला का एनालिसिस किया, सेकंड क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का एनालिसिस किया. व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम? A minus sign will be the only difference between these two. Y square is equal to something into x. अगर पॉजिटिव नंबर आया तो राइट हैंडेड पैराबोला, नेगेटिव नंबर आया तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Shall we go to the next question? अगर नोट किया तो हैंड रेस करिए एक बार. नेक्स्ट, y is equal to x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. इस बार y का स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर है. So y is equal to x square minus 2x plus 3. Now separate x terms and y terms. So y minus 3 is equal to x square minus 2x. Now if you want to complete this square, simply you just need a 1, right? X square minus 2x plus 1 है तो x minus 1 whole square हो जाएगा. So y minus 3 plus 1 is equal to x square minus 2x plus 1. Which implies x minus 1 whole square is equal to y minus 2. You can compare this with x square is equal to 4ay. Yes or no? You can compare this with x square is equal to 4ay. So x के प्लेस में x minus 1 है, y के प्लेस में y minus 2 है, 4a के प्लेस में simply you have 1. Yes or no? So this is a vertical parabola. Yes or no? What is a vertex? बोल सकते हैं कोई? What is a vertex? 1,2. 1,2. Easy. इसके बाद what is a lattice rectum? 1. Lattice rectum is 1. simply 1. Okay. If you want to draw the rough diagram of this, if you want to draw the rough diagram of this, vertex 1,2 vertex यहाँ का ही होगा, and parabola will be a vertical parabola क्योंकि x square is equal to 4ay के फॉर्म में है. So parabola will be something like this. Yes or no? So this point is 1,2. Vertex तो vertical होगा. Yes or no? So what is the equation of the axis? Axis क्या होगा? It's parallel to y axis. So x is equal to constant form में होगा and 1,2 से जा रहे हैं. So x equal to क्या होगा? X is equal to 1. 1. Yes or no? 1. Axis हो गया. इसके बाद फोकस डायरेक्ट्रिक्स. फोकस के लिए a यूनिट्स अंदर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स के लिए a यूनिट्स बाहर आना पड़ेगा. ऐसा नो? सो इफ यू गो a यूनिट्स upwards, so a is nothing but 1/4. ऐसा नो? सो 1,2 से 1/4 यूनिट्स ऊपर गया तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा ना इस बार. इफ यू आर मूविंग वर्टिकली x कोऑर्डिनेट डजंट चेंज. सो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 प्लस 1/4 कितना होगा? The focus is 1,9/4. Clear? And the directrix is, obviously the directrix is parallel to x-axis this time. So y is equal to constant जैसा होगा, y equal to कितना होना चाहिए? 2 minus 1/4. ऐसा no?
So y is equal to 7 by 4 is the answer. So properties clear है? Okay or not? Yes, sir. So सेम क्वेश्चन आप इस बार खुद से करने के लिए कोशिश करिए. सर थोड़ा सा पीछे करिए ना. हो गया सर, हो गया. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से करने के लिए कोशिश करिए. एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. Did anybody get the vertex? Did anybody get the vertex? यस सर. क्या है Minus 7 vertex? by 2, comma 3 by 2. कितना? 3 by 2 comma 11 by 4. 3 by 2 कमा 11 by 4. सबको यही आंसर आया? सर माइनस 11 by 4 आएगा सर. माइनस 11 by सर सिली मिस्टेक्स नहीं करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x. If you Sir, want to complete this into perfect square, you have to add how much? 9 by 4. So x minus 3 by 2 whole square is equal to minus 2y minus 11 by 4. x minus 3 by 2 whole square is equal to, अगर minus 2 कॉमन लिया तो y plus 11 by 8. ये minus 2 शायद कॉमन नहीं लिया जो 11 by 4 बोल रहे हैं आंसर. The answer is neither 11 by 4 nor minus 11 by 4. So ये गलत है. So vertex क्या होगा? 3 by 2 कमा minus 11 by 8. Okay or not? yes, sir.
देखिए एग्जैक्टली प्रोसेस से करिए, आपको फाइनली x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट इज योर थ्योरी. ओके, बट आप देख सकते हैं y माइनस समथिंग के आगे एक नेगेटिव नंबर है. दैट मीन्स दिस इज ए डाउनवर्ड पैराबोला. यस और नो? दिस इज ए डाउनवर्ड पैराबोला. ओके, so what is the lattice rectum? Lattice rectum is 4a which is equal to 2 units. Okay, clear है क्या नहीं? So if you want to draw the rough sketch, vertex 3 by 2 comma minus 11 by 8 and the parabola will look something like this. Yes or no? What is the axis? Axis is parallel to y axis, so x is equal to constant form में होना चाहिए. 3 by 2 से जा रहे, so x is equal to 3 by 2. Okay, so the axis is x is equal to 3 by 2. What is the focus? Focus के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to go a units into the parabola. Yes or no? So यहाँ से आप a units अंदर जाना है. a का मतलब कितना है? 1 by 2. Yes or no? 4a is 2, so a equal to 1 by 2. So if you are going vertically, only the y coordinate changes. So s is equal to x coordinate जितना है 3 by 2 उतना ही रहेगा. So minus 11 by 8 minus 1 by 2 which is equal to 3 by 2 comma minus 15 by 8. समझ में आ रहे? These are the coordinates of the focus. Y coordinate minus 11 by 8 और 1 by 2 नीचे गया, so minus 11 by 8 minus 1 by 2. समझ में आ रहे? एंड डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो a यूनिट्स अपवर्ड्स. इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो बढ़ेगा. सो द डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू x एक्सिस. सो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए. वो कांस्टेंट कितना होगा? माइनस 11 बाई 8 को आप हाफ ऐड करना है. ऐसा नो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 8. ओके, समझ में आ रहे? सो डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस, लैटिस रेक्टम, वर्टेक्स कैसे निकालना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर. नोट किया? नोट किया तो हैंड रेस करिए एक बार. यस. सो यहां तक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया? So we are approaching the end of this chapter. So last but one topic. Quadratic functions are parabolas. ये 10th क्लास में आप किए हैं. If you have a quadratic function, याद है 10th क्लास में y is equal to x square minus 2x plus 5. This is called a quadratic function. क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ्स ड्रॉ किया, याद है 10th क्लास में ग्राफ शीट में? यू गॉट समथिंग कॉल्ड पैराबोलास. याद है? यस सर. So now the question is, now that you know the concept of parabola, should a quadratic function be a parabola theoretically? अगर y is equal to x square minus 2x plus 5 है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं ये पैराबोला होना चाहिए. So now you can do.
एंड इस पैराबोला का इतना ही नहीं, सर वर्टिकल पैराबोला है सर, वर्टिकल। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर है y का स्क्वायर नहीं है, देन इट विल बी अ वर्टिकल पैराबोला। y का स्क्वायर है x का स्क्वायर नहीं है, देन इट विल बी ए हॉरिजॉन्टल पैराबोला। समझ में आ रहे? So all quadratic functions are parabolas. Okay, if you are given a quadratic function, you'll be asked to find the vertex of the parabola. आप निकाल सकते हैं. For example, if I ask you y equal to x square minus 2x plus 5, this is the question. What is the vertex of this parabola? आप simply क्या करना पड़ेगा? You just have to follow the process that we have followed in the previous question. Completion of squares use करके, ठीक है, you have to convert into standard shifted parabola. इसके बाद आपको सारा प्रॉपर्टीज नजर आ जाएगा, ऐसा ना? So y is equal to x square minus 2x plus 1 plus 4 कर सकता हूँ 5 को. So 5 को plus 1 plus 4 क्यों किया? क्योंकि y minus 4 is equal to x minus 1 whole square लिख सकता हूँ अभी, ऐसा ना? y minus 4 is equal to x minus 1 whole square लिख सकता हूँ. Now this looks like x square is equal to 4ay, ऐसा ना? x square is equal to 4ay, x के प्लेस में x minus 1 है, y के प्लेस में y minus 4 है, ऐसा ना? So it's just a shifted vertical parabola, right? So vertex क्या होगा? Vertex is simply 1, 4. समझ में आ रहे? And what is the lattice rectum? Lattice rectum is what? Lattice rectum is simply 1 unit. Yes or no? So if you are given a quadratic function, you can find the vertex and lattice rectum using the method of completion of squares. Okay? Clear? Okay or not? Okay, sir. But हम एक जनरल डेरिवेशन करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शंस इतना फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम्स में आता है, such that you have to remember the formulas for quadratic functions, क्योंकि ये मेथड एग्जाम में करके टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो एक बार एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. ओके, समझ में आ रहे? सो व्हाट इज अ जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx plus c, ऐसा नो? दिस इज अ जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट? सो इसको आप मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स यूज करना है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स, ऐसा नो? देखिए c को मैं लेफ्ट साइड लेके गया, a कॉमन लिया, सो y माइनस सी इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स. स्क्वायर्स कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए अभी एक्स्ट्रा? क्योंकि b बाई ए इंटू एक्स को आप 2 इंटू बी बाई 2a लिख सकते हैं. सो होल स्क्वायर चाहिए, सो यू नीड b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस करके माइनस b कर लीजिए. सो दिस इंप्लाइज y माइनस सी इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर. And what will be left out? A into b square by 4a square is minus b square by 4a. Minus b square by 4a. So ये minus b square by 4a को आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए. So y plus b square by 4a minus c is equal to a times x plus b by 2a का whole square. Okay. Which implies y plus b square minus 4ac by 4a, ऐसा नो, is equal to a times x plus b by 2a का whole square, right? So एक quadratic equation का b square minus 4ac को क्या बोलते हैं हम? b square minus 4ac has a special name. What is it? Discriminant. ऐसा नो. सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ y प्लस डी बाई 4a का होल स्क्वायर
सॉरी y प्लस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, एंड इस a को मैं लेफ्ट साइड भेज सकता हूँ 1 by a. So this a goes on to that side, becomes 1 by a. So effectively आपको x plus b by 2a का whole square is equal to 1 by a times y plus d by 4a. This is the simplification. समझ में आ रहे? तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए, x square is equal to 4ay से. If you compare this with x square is equal to 4ay, what is the vertex of this parabola? What is the vertex of this parabola? बोलिए. The vertex is, anybody, what is the vertex? If you compare this with x square is equal to 4ay, what is the vertex? minus b by 2a, comma minus d by 4a. Minus b by 2a minus d by 4a. ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4a. ओके, क्लियर है? एंड व्हाट इज द लैटिस रेक्टम? 1 by a. लैटिस रेक्टम कितना है? सिंपली 1 by a. समझ में आ रहा है? 1 by a इज द लैटिस रेक्टम. समझ में आया? क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर a पॉजिटिव है तब बाहर वाला नंबर पॉजिटिव होगा, वो अपवर्ड पैराबोला होगा. अगर a नेगेटिव है तो the number which is outside y plus d by 4a is negative, so it will be a downward parabola. Clear है? अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला. क्लियर? समझ में आ रहे? Yes, sir. So what is the vertex of y is equal to x square plus bx plus c? एक बार जोर से बोलिए, what is the vertex? What is the formula for vertex? What is the formula for vertex? minus b by minus 2 b by 2 minus d by 4a. हाँ, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4a. बाकी लोग भी एक बार जोर से बोलिए, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4a. क्लियर है? एंड व्हाट इज द लैटिस रेक्टम? 1 by 1 by a. ठीक है. बट एक्चुअल फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट टाइप में छोटा छोटा कौन से इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं. ये एक्चुअली 1 by a नहीं है लैटिस रेक्टम. लैटिस रेक्टम क्या है एग्जैक्टली अगर बोलना है तो द लैटिस रेक्टम इज 1 by mod a. ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी a नेगेटिव हो सकते हैं. ऐसा और नो? a नेगेटिव है तो द पैराबोला इज ए डाउनवर्ड पैराबोला. ऐसा और नो? सो लैटिस रेक्टम क्या होगा? मान लीजिए a माइनस टू है, लैटिस रेक्टम क्या होगा? 1 by माइनस टू होगा या 1 by mod ऑफ माइनस टू होगा? 1 by mod of minus 2. 1 by mod ऑफ माइनस टू होगा. जो माइनस है दैट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला. ऐसा नो? ऊपर है क्या नीचे है वो स्पेसिफाई करते हैं वो माइनस. ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके और नॉट? ये नोट किया? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर ऑफ पैराबोला. अगर समझ में आया तो एक बार फॉर्मूलाज अच्छे से लिखेंगे, ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे. लेट अस सी व्हाट वी कैन डू विद दीज फॉर्मूलाज. नोट किया सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Vertex and lattice rectum of a quadratic function. So y is equal to ax square plus bx plus c. एक बार फिर अच्छे सा फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ. क्या याद रखना है क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में? इट विल बी ए वर्टिकल पैराबोला. यस और नो?
the graph of y is equal to quadratic will be a vertical parabola. What is the vertex? Vertex is minus b by 2a comma minus d by 4a. Okay, yes or no? And latus rectum is 1 by modulus of a. Clear? Easy. So if you look at the graph, so the graph will be a parabola. The vertex, ये वाला point क्या होगा? minus b by 2a minus d by 4a. समझ में आ रहे? If it is an upward parabola, अगर a positive है तो, yes or no? a positive है तो ग्राफ ऐसा आएगा, a negative है तो it will be a downward parabola, yes or no? बट वर्टेक्स का फॉर्मूला सेम है, अभी भी वर्टेक्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a है, वर्टेक्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. ओके, क्लियर? समझ में आ रहे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? सो ये माइनस डी बाई 4a, ये नंबर जो है और कौन सा क्वेश्चन में आपको यूज होगा? एक है वर्टेक्स ऑफ ए वर्टिकल पैराबोला, माइनस डी बाई 4a माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो सिचुएशन में आपको माइनस डी बाई 4a यूज होगा. एक और सिचुएशन है, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ये वर्टेक्स का मतलब y का सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, ऐसा नो? सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना ये माइनस डी बाई 4a, ऐसा नो? Yes, sir. So if you are asked to find the minimum value of this function, ax square plus bx plus c का सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं, उसका आंसर भी माइनस डी बाई 4a होगा, ऐसा नो? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं, तब भी आंसर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? अभी भी माइनस डी बाई 4a ही यूज करना है. क्लियर? सो माइनस डी बाई 4a और कौन सा सिचुएशन में यूज होगा? टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऐसा नो? क्लियर? Yes. सो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू का भी वही फॉर्मूला है, मिनिमम वैल्यू का भी वही फॉर्मूला है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग नंबर्स है ना. एक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों सेम हो सकते हैं? बट मैं बोल रहा हूँ दोनों मैक्सिमम वैल्यू का भी फॉर्मूला माइनस डी बाई 4a है, मिनिमम वैल्यू का भी फॉर्मूला माइनस डी बाई 4a है, ऐसा कैसे हो सकते हैं? सो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों एक ही फंक्शन का नहीं है. अगर a पॉजिटिव है तो, इफ a इज पॉजिटिव, then minus d by 4a gives you the which value, minimum or maximum? Minimum. Minimum value. अगर a पॉजिटिव है तो आपको माइनस डी बाई 4a मिनिमम वैल्यू देगा. उस समय मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अगर a पॉजिटिव है तो द मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो ऊपर चलते रहेगा, ऐसा ना? इफ a इज Yes, पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4a, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी. अगर a नेगेटिव है तो, इफ a इज नेगेटिव, तब माइनस डी बाई 4 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी कितना? मिनिमम वैल्यू कितना होगा? Infinity. माइनस इंफिनिटी. Minus. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू नहीं होगा. Minus infinity. इफ a इज नेगेटिव, द फंक्शन विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू. इफ a इज पॉजिटिव, द फंक्शन विल हैव ए मिनिमम वैल्यू. बट दोनों का फॉर्मूला माइनस डी बाई 4 है. क्लियर है? ओके, नॉट? क्लियर है क्या नहीं? बहुत बार आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है ये.
What is the lattice rectum of this parabola? What is the answer? What is the lattice rectum of this parabola? 1/4. कितना? 1/4. 1/4 सही है. देखिए अगर फॉर्मूला 1/a पता है तो ये ओरल क्वेश्चन होगा. अगर वो फॉर्मूला याद नहीं, इसको मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से पूरा सिंप्लीफाई करके लास्ट में आपको देखना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर बचा है. सो वो सारा काम जो है आपको बच जाएगा अगर 1/a लैटिस रेक्टम अगर याद किया तो. ओके क्लियर. सो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा? शुड आई आस्क यू द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू पूछना पड़ेगा मुझे. ऐसा नो, आई कैन आस्क यू द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? -d/4a. माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. 4 माइनस ऑफ 28 इंटू 4. 28 इंटू 4 कितना है? 102 है क्या? 28 इंटू 4 32 प्लस 80 112. ओके by 4 into 4 16. So 112 minus 4 108 by 16 will be the minimum value of this function. Okay, अब चाहे तो बाकी कैंसिल कर सकते हैं. If you cancel it out, 4 4s are 4 27s are, so 27 by 4 will be the minimum value of this function. Okay, clear? Yes or no? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 2, -3 एंड फोकस 0,5. देखिए आप थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चंस का रिवीजन, स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट्स का. एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 2, -3 है. ये वर्टेक्स है. फोकस इज एट 0,5. कहाँ है फोकस? सो दिस इज द फोकस, दिस इज द वर्टेक्स. इसका मतलब मेरा पैराबोला देखने में कैसा होगा? देखिए फोकस एंड वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करते हैं, व्हाट इज द लाइन दैट यू गेट? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम क्या बोलते हैं? Axis. This can be called up as axis. Yes or no? So parabola will be symmetric about the axis. So my parabola will be something like this. Yes or no? Is it a shifted parabola or a general parabola? ये बात बोलिए. Is it a shifted parabola or a general parabola? Shifted parabola. Shifted parabola. शिफ्टेड पैराबोला नहीं है, ये जनरल पैराबोला है. क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये टिल्टेड पैराबोला है. दिस इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल. ऐसा ना? ये आपको लग रहा है क्या एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और एग्जैक्टली वर्टिकल? नहीं ना? No, sir. सो दिस इज ए जनरल पैराबोला. जनरल पैराबोलास की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स यूज करके. ऐसा ना? तो स्टार्टिंग में हम किए हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ऐसा नो? बट इस बार ट्विस्ट क्या किया क्वेश्चन का? हाउ इज द क्वेश्चन ट्विस्टेड? इस बार फोकस एंड वर्टेक्स दिया. सो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स. ऐसा नो? Yes, sir. सो डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करिएगा? सो डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करिएगा? बोलिए. हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स? सो अपना कुछ सोचना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स. सो एनीबॉडी, कैन समवन थिंक ऑफ ए एल्गोरिथम टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स?
So the point of intersection of the axis and the directrix is equal to SA from A. क्या है? अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट M है, हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट M? ठीक, So SA is equals to AM. SA is equals to AM. SA इक्वल टू AM, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए क्या? M को मान लीजिए P कमा Q मान लीजिए. You have to find P and Q, right? So what is the Yes, easiest sir. method to find P and Q? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे? सर मिड पॉइंट से भी तो निकल जाएगा. हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो P एंड Q में एक इक्वेशन आएगा, उसको इसके बाद क्या करिएगा, ऐसा ना? So it's not just SA is equal to AM, they are also on a straight line, ऐसा ना? इसका मतलब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सही है क्या नहीं? So what is the midpoint of SM? A. So midpoint of SM is A. So midpoint का formula P plus 0 by 2, Q plus 5 by 2, ऐसा ना? is equal to A का मतलब 2 कमा माइनस 3, ऐसा ना? So आप इक्वेट किया तो P कितना आएगा बोलिए? P इक्वल टू 4 आ रहे हैं, Q इज इक्वल टू माइनस 11, ऐसा ना? P कमा Q आ गया, क्लियर? समझ में आ रहे? Yes, sir. So you got this point P comma Q using midpoint formula. Okay. Next, what is the next thing that you do to get the equation of the directrix? इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल सकते हैं कोई? Can anybody find the slope of this directrix? उसके लिए कुछ algorithm बना सकते हैं? सर हाँ बोलिए. सर सर लाइन एएम का स्लोप निकालिए सर, उसका परपेंडिकुलर होगा. बहुत अच्छा है, हो गया ना. AM का निकाल सकते हैं, AS का निकाल सकते हैं, सारा सेम है, ऐसा ना? सो जो भी इजी लग रहा है आप स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ AS और AM कुछ भी निकाल सकते हैं. सो 5 + 3 8 बाई -2, सो -4 आ रहे हैं, ऐसा ना? एक बार आप जो AM का निकालना चाहते हैं AM का भी निकाल दीजिए, -4 आना चाहिए. आ रहा है क्या नहीं? Are you getting -4 as the slope of AS or AM or SM? सबका सेम आना चाहिए. अगर AS का स्लोप -4 आया तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना होना चाहिए? तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1/4. 1/4. 1/4, ऐसा ना? सो डायरेक्ट्रिक्स का आपको स्लोप पता है, डायरेक्ट्रिक्स इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट विच इज नोन, सो इक्वेशन निकाल सकते हैं. y - y1 is equal to m into x minus x1, ऐसा ना? राइट, ऐसा नो? यस सर. बट Yes, sir. अब इतना बड़ा हो गया, हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं. सो स्लोप 1/4 का मतलब इक्वेशन देखने में x - 4y जैसा होना चाहिए, ऐसा नो? The equation should look like x - 4y is equal to something and is equal to what? वो कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला पॉइंट सबशूट करके फाइंड करेंगे, ऐसा नो? सो पॉइंट सबशूट किया तो 4 + 44 48 आ रहे हैं. So the line equation is simply x - 4y is equal to 48. Okay or not? देखिए छोटे छोटे शॉर्टकट्स यूज किया तो आप अपना फ्रेंड से फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? तब मजा आएगा. वही फॉर्मूलाज बार बार यूज करने से मजा नहीं आएगा. यू हैव टू क्रिएट योर ओन शॉर्टकट्स. क्लियर? लाइन इक्वेशन जो मैं लिखा हूं, कितने लोग को समझ में आया कैसे लिखा हूं? सबको समझ में आया? Yes, sir.
Yes, sir. आप भी कर सकते हैं वैसा शॉर्टकट से। लाइन का अगर स्लोप पता है, कैन यू राइट द एक्स एंड वाई पार्ट फ्रॉम द स्लोप, क्योंकि स्लोप के इक्वेशन माइनस ऑफ ए बाई बी होता है ना, ऐसा नो। सो कोएफिशिएंट्स ऐसे एडजस्ट करना है कि जो स्लोप चाहिए वो स्लोप आ जाए हमको। क्लियर? सो नाउ यू गॉट द डायरेक्ट्रिक्स, you have the focus. So what is the equation? What is the equation of the parabola? X minus 0 whole square plus y minus 5 whole square is equal to x minus 4y minus 48 whole square by 1 square plus 4 square 17 हो गया आंसर? 17. So this is the answer. So अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टली दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर फोकस एंड वर्टेक्स दिया तो समझ में आया कैसे करना है। सो फर्स्ट ब्लॉक विल बी टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। एक बार डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के बाद स्टैंडर्ड मेथड है। अगर ये समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए, मैं देखता हूं कितने लोग को समझ में आया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes. Find the equation of the parabola whose focus is at 1 minus सर 1 and रुकिए सर, नोट कर रहे हैं। हाँ तो बोलिए पहला जब मैं पूछता हूँ। हो गया सर। Good. Next, find the equation of the parabola whose focus is at 1 minus 1 and vertex is at 2 comma 1. So again, let us try to draw the information. Focus 1 comma minus 1 somewhere here, and the directrix is 2 comma 1. Sorry, the vertex is 2 comma 1. Okay. So is this a shifted parabola or a tilted parabola or inclined parabola? Is it a shifted parabola or an inclined parabola? Shifted parabola का मतलब है axis either x axis और y axis का parallel आना चाहिए. Obviously the axis is neither parallel to x axis nor parallel to y axis, so this is a shifted parabola, yes or no? Sorry, this is a inclined parabola. So इसकी इक्वेशन कैसे निकालिएगा? So पैराबोला देखने में ऐसा कुछ होना चाहिए, yes or no? It has to look something like this. So इसका भी सेम प्रोसेस है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया, वैसा ही प्रोसेस होगा इसका भी, yes or no? So फर्स्ट हम डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, so ये वाला पॉइंट निकालेंगे, लेट दैट बी द पॉइंट M. डायरेक्टली बोल सकते हैं, so बेसिकली यहाँ नंबर और यहाँ नंबर ऐड किया तो 2 टाइम्स दिस नंबर आना चाहिए. so A का कोऑर्डिनेट्स को डबल किया तो 4,2 आएगा, ऐसा नो? A कोऑर्डिनेट्स को डबल किया तो 4,2 आएगा. so S एंड M मिलके इतना आना चाहिए. so M का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बोलिए? 3, anybody can you tell me fast what are the coordinates of M? 3,3. 3, कितना? 3, जोर से. Sir, 3. 3, यस, सही क्या नहीं? 3 + 1 मिलके 4 आ गया, 3 - 1 करके 2 आ गया. क्लियर? इज इट ओके? इसके बाद जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे. द स्लोप ऑफ एक्सिस इज 2/1.
सो 2 आ रहा है स्लोप, देख लीजिए। सो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आना चाहिए? -1/2 आना चाहिए। So the equation of directrix should look like x plus 2y. Yes or no? The equation of directrix should look like x plus 2y. Clear? The equation of directrix should look like x plus 2y is equal to क्या होना चाहिए? 3,3 से पास करना है, so right side मुझे क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी बोल सकते हैं? 9. गुड। सो डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया। इस बार देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा हमको, बट इफ यू नो द प्रोसेस इस बार कम टाइम में हो गया। सो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2y - 9 होल स्क्वायर बाई 5। हो गया आंसर? yes or no? That's the equation of the required parabola. Okay. Yes, sir. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Find the equation of the parabola whose latus rectum is 4 units and axis is this line and tangent at the vertex is this line. देखिए, इस बार इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरीके से दिए हैं। एक बार ध्यान दे दीजिए, एक बार ध्यान दे दीजिए। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है ना? ऐसा नो? स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y² इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। ऐसा नो? यस सर। देखिए, एक नया शॉर्टकट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। ये y² इज इक्वल टू 4ax, राइट? सो ये 4a को मैं लैटिस रेक्टम बोल सकता हूं। y² इज इक्वल टू लैटिस रेक्टम टाइम्स x। ऐसा नो? Yes, sir. तो इसका मतलब देखिए, पैराबोला का एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है। अगर इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, एंड दिस पॉइंट सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ऐसा ना? सो यहां y का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ऐसा नो? यही डिस्टेंस है ना y? ऐसा नो? Yes, sir. यस सर। एंड ये x क्या है? व्हाट इज दिस x? x इज दिस डिस्टेंस, ऐसा नो? और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस, ऐसा नो? क्लियर है? ये तो y एक्सिस है, बिकॉज द पैराबोला इज हियर, दिस इज लुकिंग लाइक y एक्सिस। अगर ये पूरा डायग्राम को मैं कहीं भी लेके जाऊं, assume that I am taking this whole diagram, assume that I am taking this assume that I am taking this whole diagram, ठीक है? I am shifting this whole diagram। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ऐसे घुमा दिया मैंने। अब मान लीजिए ये x एक्सिस नहीं है, ये y एक्सिस नहीं है। assume that this is not x axis, this is not y axis, कुछ ना कुछ डायरेक्शन से। but with respect to parabola, is there something, can you describe this line in some way with respect to this parabola? इस लाइन को इस पैराबोला के हिसाब से कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकता है? व्हाट इज दिस लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला? दिस लाइन इज द tangent at the vertex, सही है कि नहीं? Yes, sir. सो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस
का होल स्क्वायर will always be equal to latus rectum times distance from the tangent at the vertex. समझ में आ रहा है क्या नहीं? y square is equal to 4x का मतलब है पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो उस पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है that will always be equal to latus rectum times the distance from the tangent at the vertex. समझ में आ रहे? देखिए पैराबोला को कहीं भी लेके जाइए कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होगा बट दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा. No, sir. सो डिस्टेंसेस के बीच में अगर कुछ रिलेशन है वो रिलेशन जो है पैराबोला का कहीं भी लेके जाइए वो रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा. ऐसा ना मान लीजिए Yes, ये पैराबोला को आप कहीं भी लेके जा रहे हैं कहीं कैसे भी घुमा रहे हैं कहीं भी लेके जा रहे हैं इस पैराबोला को. ठीक है. सो पैराबोला का ऊपर जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं एक्सिस का इक्वेशन चेंज हो सकते हैं टेंजेंट एट द पैराबोला का टेंजेंट एट द वर्टेक्स का इक्वेशन चेंज हो सकता है बट क्या चेंज नहीं होगा? व्हाट डज नॉट चेंज? द डिस्टेंसेस बिटवीन Distance. एनी टू पॉइंट्स. कोई भी पैराबोला के ऊपर कोई भी दो पॉइंट या पैराबोला का एक्सिस और वो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस वो नंबर से चेंज नहीं होगा ना. ऐसा नो Yes. यही कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में कैसे आप सोचते हैं? फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट कहाँ आते हैं? रोटेशन चैप्टर हो गया आपका फिजिक्स में? रोटेशन हुआ? no, sir. ओके रोटेशन नहीं हुआ. रोटेशन में आएगा रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? आया है फिजिक्स में डेफिनेशन व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? No, sir. रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी का मतलब है एक बॉडी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. सर नो सो वैसा ही दिस पैराबोला इज अ रिजिड बॉडी. सर नो पैराबोला का शेप चेंज नहीं कर रहा हूं ना मैं. आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग इट टू अनदर पॉइंट. So the coordinates might change, but the distances will not change. So what is a standard relation in a parabola? What is the standard relation in a parabola? If you take any point on the parabola, the distance from axis ka whole square will always be equal to what? Latus rectum times the distance from Tangent. tangent at the vertex. समझ में आ रहे? क्लियर है? ये पॉइंट मैं अच्छे से लिखता हूं. ठीक है. लेट मी राइट दिस. ओके. सो मैं क्या करता हूं? सो इन ए पैराबोला, सो एक पैराबोला में व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी? Distance of any point on parabola from axis will be equal to latus rectum times distance of the point from what? Tangent at vertex. समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? ओके. Yes, sir. So in a parabola, ध्यान से ये याद रख लीजिए, distance of any point on parabola from axis is equal to latus rectum times the distance of that point from the tangent at the vertex. So ये पूरा कहानी मैं क्यों बोला हूं? Why did I tell you this story? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, you're asked to find the equation of the parabola whose latus rectum is 4 units, whose axis is, देखिए
एक्सिस इज 3x प्लस 4y माइनस 4 समथिंग लाइक दिस। बोल रहा है कि ये मेरा पैराबोला का एक्सिस है, क्या है 3x प्लस 4y माइनस 4। एंड व्हाट इज द tangent at the vertex? इस पैराबोला का tangent at the vertex क्या है 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या नहीं? एक है 3x प्लस 4y, दूसरा 4x माइनस 3y। आर दीज टू लाइंस परपेंडिकुलर? यस और नो? सो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, सो मान लीजिए ऐसा लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द tangent at the vertex, दिस इज द एक्सिस। ऐसा नो? सो आप ये बोल सकते हैं मेरा पैराबोला देखने में कैसा होगा, हाउ विल माई पैराबोला लुक लाइक? देखिए ये वाला एक्सिस है, सो एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड दिस इज द tangent at the vertex, so this should be the vertex, right? yes or no? यही वर्टेक्स होगा। सो tangent at the vertex जो है, वर्टेक्स से तो जाना पड़ेगा। सो मेरा पैराबोला जो है इधर ऐसा हो सकते हैं और ऐसा हो सकते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नो? इज इट क्लियर? Yes, sir. So if you take the first parabola, what is the axis of this parabola? 3x plus 4y minus 4 equal to 0. What is the vertex? The vertex is this point. What is the tangent at the vertex? This line. And इस parabola का lattice rectum कितना है? 4 units. Okay. So ये red parabola का equation चाहिए। Equation का मतलब क्या है? Some condition which each and every point on the parabola satisfies. ऐसा no? So इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूं मैं, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर। ऐसा नो? इफ यू टेक p x, y as any point on this parabola, if you take p x, y as any point on this parabola, what is the distance between the point and the axis? जस्ट इस पॉइंट को एक्सिस में सब्स्टिट्यूट करके बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। ऐसा नो? सो 3x प्लस 4y माइनस 4 बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5। ऐसा नो? इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैटिस रेक्टम कितना है? लैटिस रेक्टम इज 4। देखिए मुझे दो इक्वेशंस चाहिए, आपको ध्यान से देख लीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x भी हो सकता है ना? ऐसा नो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x भी एक पैराबोला है। ऐसा नो? Yes, sir. सो Yes, डिस्टेंस sir. फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4a टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द tangent at the vertex हो सकते हैं, और माइनस 4a टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स हो सकता है। ऐसा नो? सो यहाँ प्लस और माइनस 4 लिख सकता हूँ। प्लस लिया तो एक इक्वेशन आएगा, माइनस लिया तो दूसरा इक्वेशन आएगा। ओके, सो प्लस और माइनस 4 टाइम्स व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द tangent at the vertex? इस पॉइंट को x, y को आप tangent at the vertex में सब्स्टिट्यूट करना है। सो 4x माइनस 3y प्लस 7 बाई 5। ओके और नॉट? Okay. So what is this? This is the equation of these red parabolas. प्लस 4 लिया तो एक पैराबोला आएगा, माइनस 1 माइनस लिया तो दूसरा पैराबोला की इक्वेशन आएगा। एक नया मेथड है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, दूसरा है एक्सिस लैटिस रेक्टम tangent at the vertex मेथड। ये वाला मेथड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us stop at this point. We'll continue in the next class. Okay.
Yes. Thank you, sir. Welcome, Thank you, sir. Okay बेटा, bye.